پی ایس ایل کے باعث سڑکوں کی بندش، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ملزم کو پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ میچوں کی وجہ سے پولیس کی عیاشیاں شروع ہو گئیں۔ عدالت نے چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری کو طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی۔ وکیل مدعی کے مطابق ملزم نے مدعی کی 4 کروڑ کی پراپرٹی ہتھیار رکھی ہے۔ کہ سیٹیں خالی رہ گئیں، سیٹیں خالی رہنا جرم ہے۔ پی ایم ڈی سی فیکلٹی فیسلٹیز انفراسٹرکچر کو دیکھ کر کوٹا ایلوکیٹ کرتا ہے۔ جب آپ نے ہمیں وہ کوٹا ایلوکیٹ کر دیا تو بھر کے دینا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں تو سادہ سی باتیں کرتا ہوں کہ یہ سیٹیں 2 سال پہلے تو ساری پوری ہوتی تھی، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی فیس زیادہ اس لیے یا لوگوں کا رجحان نہیں ہے۔ بھائی یہ بھی غلط انفارمیشن ہے۔ 1,32,000 لوگوں نے ایم ڈی کارڈ دیا ہے، صرف 19,000 اکوموڈیٹ ہوئے ہیں، باقی کا میڈیکل کالجز کو فیسوں کے معاملے میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل انڈکشن پالیسی کی وجہ سے میڈیکل کالجز میں سیٹیں خالی رہ گئیں۔ یہ سیٹیں خالی رہنا ایک جرم ہے۔ صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان ہیلتھ پالیسیوں پر برہم، کہا ہیلتھ ریفارمز کمیٹی پامی کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ طے کرے۔ 2 سال قبل میڈیکل کالج میں آسانی کے ساتھ سیٹیں پر ہو جاتی تھیں۔ کرائسس حل نہ کیے تو ملک میں میڈیکل کالجز نہیں رہیں گے۔ 7,000 بچہ ہر سال ملک سے باہر جا رہا ہے، اور سینٹرل ایشیا کے سب سٹینڈرڈ، کریبین کے سب سٹینڈرڈ، چائنا سے وہ پڑھ کے آتے ہیں اور یہاں آ کے فیل ہوتے ہیں، اور ہمارا ملک کا فارن ایکسچینج بھی باہر جاتا ہے۔ ہماری سیٹیں تو صرف 1,800 خالی ہیں، تو ان 7,000 کو آپ کیوں باہر بھیج رہے ہیں؟ آپ ہماری پالیسیز سیدھی کیوں نہیں کرتے کہ معاملہ سارے سیدھے ہو جائیں؟ تو ہمارا دوسرا ایشو یہ ہے کہ سینٹرل انڈکشن پرائم منسٹر کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ اس پر ہائر ایجوکیشن ریفارم کمیٹی بیٹھے گی، فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ کی سربراہی میں، اور بیٹھ کے فیصلہ کرتے گی۔ ملک میں ڈاکٹرز اور نرسز کی شدید قلت ہے۔ 7,000 میڈیکل طلبہ ہر سال ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی زائد فیسوں کا صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ صدر قومی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا کوالٹی سٹینڈرز کے نام پر میڈیکل کالجز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر صحت اور نائب وزیر اعظم اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ 1,32,000 بچوں نے ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیا۔ اس ٹیسٹ کی وجہ سے صرف 19,000 بچے داخلہ لے سکے، باقی بچوں کو کون ایڈجسٹ کرے گا؟ میرٹ کے نام پر میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کا کسان کارڈز فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم مریم نواز کا چھوٹے کاشتکاروں کے لیے بڑا ریلیف پیکیج۔ محکمہ زراعت نے چیف منسٹر پنجاب کسان کارڈ فیز 2 منصوبہ متعارف کرا دیا۔ کارڈ فیز 2 کی مجموعی لاگت 9,99,70,70,000 روپے مقرر۔ منصوبہ جون 2028 تک مکمل ہوگا۔ پنجاب میں زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے نیا منصوبہ تیار۔ سیکرٹری زراعت کی منظوری سے دستاویزات پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو ارسال۔ منصوبہ جون میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کے تحت کسانوں کی آمدن بہتر بنانے کے ساتھ خوراک کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ تصدیق شدہ بیجوں کی مقامی سطح پر پیداوار کو بڑھایا جائے گا۔ تقریب آپ نے دیکھی جس کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، اور یہ جی ایس پی سٹیٹس کو ریووک کرنے کے حوالے سے ایک تقریب تھی جس میں یہ ڈسکشن تھی کہ کیوں نہ پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس جو ہے کیوں نہ اس کو ریووک کر دیا جائے۔ ان کی جو ملاقاتیں ہیں، ان کی جو بات چیت ہوتی ہے جیل کے اندر، وہ کوئی حال احوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی جو ہے وہ کسی بھی طرح کسی کی ایک ہوتا نا ذاتی جو آپ کا تعلق ہے بہن کا بھائی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، بچوں کا باپ کے ساتھ، ایسا تعلق والی بات آپ کو نظر نہیں آتی۔ جب بھی بات ہوگی وہاں فتنہ خان پاکستان کے اندر کسی نہ کسی سازش کو پلان کرنے کے لیے اس ملاقات کو استعمال کریں۔
कल एक तकरीर को पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस को मतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। कुछ लोग खुद को पाकिस्तान पर मुकद्दम समझते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, पीटीआई भारतीय और इसराइली लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चला रही है। बानी पीटीआई के बेटे अमेरिका में इसराइली लॉबी के साथ मिले। उनका वाहद दलील ये थी कि वाला साहब जेल में हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में शफाफियत का मिशन। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का नकल माफिया के खिलाफ ऐलान जंग। ऑल पंजाब कमिश्नर इजलास में इम्तिहानात के लिए मॉनिटरिंग सख्त करने की हदायत। कहा, अफसरान दफातर छोड़कर फील्ड में सरप्राइज दौरे करें। पेपर लीकेज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में स्कूलों की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। एईओस को तमाम स्कूलों के दौरे लाजमी करने की हदायत। महकमा तालीम के मुताबिक हर स्कूल का महीने में कम अज कम 2 बार विजिट किया जाए। मॉनिटरिंग ऐप फाल। एईओस को लॉकन जारी करने का हुक्म। एईओस की रिपोर्टिंग को सीईओस की मालूमात समझा जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का THQ हस्पताल रायफिंड का अचानक दौरा। इंतजामिया की दौड़े लग गई। एमरजेंसी में एक बेड पर 2 मरीजों की मौजूदगी और अमले की कमी पर वज़ीर सेहत का इजहार बरहमी। फौरी तौर पर इजाफी मरीजों को खाली वार्ड में मुंतकिल करने का हुक्म। मुआयने के दौरान एक नर्स की 5 वार्ड्स में ड्यूटी पर भी नाराजगी। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल कोट लखपत से इंसुलिन चोरी। डिस्पेंसर ने मिली भगत से लाखों रुपए मालियत की इंसुलिन चोरी कर ली। MS ने नोटिस ले लिया। डिस्पेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में 1,40,000 रुपए मालियत के पैकेट का जिक्र, जबकि 4 पैकेट चोरी हुए जिनकी मालियत पौने 5 लाख रुपए बनती है। अराजी खरीदारी अमल में शफाफियत के लिए कवानीन की तैयारी। पहले मरहले में लाहौर से प्रॉपर्टी फाइलिंग सिस्टम का खात्मा। सूबाई वजीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसले। सूबाई वजीर ने कहा, किसी भी प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए हाउसिंग स्कीम्स मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री के वक्त की मुलाकात। डिजिटल अदायगियों, टैक्स नेट की तोसी और फूड सर्विस सेक्टर की रजिस्ट्रेशन के उमूर पर गौर। फूड इंडस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और टैक्स नेट बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PRA मौसम इकबाल सिपरा ने कहा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन किए बगैर फूड अथॉरिटी से लाइसेंस जारी नहीं होगा। LWMC के 1.5 अरब रुपए से जायद फंस गए। सरकारी इदारों ने सफाई के भारी वाजबात हड़प कर लिए। कंपनी अब तक 1 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल करने में नाकाम। इंतजामिया ने सिर्फ तूत लिखने पर इक्तफा किया, ठोस कदम ना उठाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मामला ना लाने से रकम की वसूली कटाई में पड़ गई। इन्फोर्समेंट विंग ने याद दहानियां भेजी मगर खातर ख्वाह कामयाबी ना मिली। सूबाई ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ बिछाड़। मोहम्मद फैसल सलीम एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन से CNW तैनात, जबकि मोहम्मद नबील रियाज PHA लाहौर के एडिशनल MD और असदुल्ला खान पंजाब फूड अथॉरिटी में एडिशनल DG ऑपरेशन मुकर्रर। राबिया रियासत को एडिशनल सेक्रेटरी लिटरेसी लगा दिया गया। ताहिर जावेद चीमा को महकमा दाखिला में डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। नोटिफिकेशन जारी। UC 170 दिल मोहम्मद रोड पर जंग आलूद पानी ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया। पानी कपड़े धोने के काबिल न बर्तन। अहले इलाका सरापा एहतजाज। वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। मसला है कि ये अगर ये आप देख रहे हैं, ये गली बना रहे हैं, इस गली में करोड़ों रुपया लग रहा है। आप यकीन करें, अभी आप पानी खोल के दिखाते हैं, जंग आलूद पानी आ रहा है। बारहा लोगों को कह चुके हैं, इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं और कई अपने नुमाइंदे भी तशरीफ ला चुके हैं जो बार बार हमसे वादा करके जाते हैं। अपने पल्ले से हमने पैसे लगा के लाइनें भी चेंज की हैं, उसके बावजूद में मसला जू के तू का मसला है।
पानी तो काफ़ी तकरीबन 2 साल से नहीं ठीक आ रहा। गली तोड़ के सीवरेज लाइनर ने कुछ बिछाई। भी नहीं करके गए, ऐसे ही चले गए। या आज 15-20 दिन हो गए हैं ऐसे ही गली छोड़ के चले गए, कोई नहीं आया। ईद और 23 मार्च पर कैदियों को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब भर की जेलों में 7,736 कैदियों की सजाओं में राहत की गई। मजमूई तौर पर 324 कैदी रिहा किए गए। सेंट्रल जेल लाहौर में 783 कैदियों की सजाएं कम हुई हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हर जाने का दावा, सेशन कोर्ट ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हर जाने के दावा पर समाअत 14 अप्रैल को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर किया हुआ है। हमारी ये जो हड़ताल है जुमेरात की, एक तो ये बड़े असूली मौक़िफ़ के ऊपर है। हम कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से ये समझते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो जुडिशल सिस्टम का हुलिया बिगाड़ दिया गया, ये उसके प्रोटेस्ट में शुरू होने वाली रैली आपने देखा कि हमारी कैबिनेट से पहले भी थी, आज भी जारी व सारी है। उसके साथ साथ हम बार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेलफेयर ऑफ बार का हमने सिर्फ नारा नहीं लगाया, हम उस पर अमली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाहौर बार के वकला का पुलिस के खिलाफ एहतजाज और रैली। लाहौर बार के वकला का जनरल हाउस इजलास। पुलिस के इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी। वकला के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शादरा में शोहर ने बीवी और 3 बच्चियों को आग लगा दी। टीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस। मुलजिम बिलाल गिरफ्तार। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने कहा कि खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। खातून से ज्यादती और तशद्दुद का मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम ने नर्स को घर वापसी पर चुंगी स्टाफ से अगवा किया। फ्लैट पर ले जाकर ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। राज फाश करने पर जान से मारने की धमकियां दी। कोट लखपत पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। आजम मार्केट क्लॉथ मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात। थाना वस्ती गेट की हुदूद में चोर मोहम्मद आरिफ की दुकान के ताले तोड़कर नकदी और सोना ले उड़ा। चोरों ने मजमूई तौर पर 1,35,75,000 रुपए का सफाया किया। पुलिस ने मुतासरा दुकानदार की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पीएचए का कारोबारी सहूलतकारी और इदारा जाती शफाफियत की जानब बड़ा कदम। बैरूनी कारोबारी तशहीर की रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन कर दिया गया। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और तशहीरी बोर्ड के लिए दरकार एनओसी अब सिर्फ ई-बिज़ ऐप के जरिए जारी किए जाएंगे। आरजी तशहीरी मुहिम के लिए इजाजतनामे का इजरा भी ई-बिज़ ऐप के जरिए किया जाएगा। महकमा खेल में ई फाइलिंग के लिए ई फोर्स ट्रेनिंग का इनकाद। पीटीबीआई के माहिरीन ट्रेनर हसीब ने तमाम शुराका को ट्रेनिंग दी। डिजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने कहा कि ई फाइलिंग से महकमा खेल की वर्किंग में जिद्दत आएगी। और नेशनल वोमेंस T20 टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। 5 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट डबल लीग फॉर्मेट पर खेला जाएगा। हर टीम 8 मैचेस खेलेगी। पॉइंट टेबल पर सरफहरिस्त 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार 12 अप्रैल को घनी ग्लास ग्राउंड में खेला जाएगा।